اکتوبر تاریخ کا اہم ترین دن ہے جو آج سے 2-3 دن پہلے گزرا ہے۔ 1 سال قبل اسی 12 اکتوبر کو مولانا خالد بیٹھے ہیں، یہ میرے دوست وہاں کے روڈ پکا کے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے جامعہ باب العلوم ایک شیخ الحدیث ہے ہمارے مولانا عبد المجید، ان کے مدرسے میں وہاں پر 6 ٹرک پولیس کے آئے، مدرسے کا گھیراؤ کیا گیا، اندر داخل ہوئے، اساتذہ کو دھکے دیے گئے، طلباء کی سواد کی تلاشی لی گئی، عورتوں کو نکالا گیا وہاں سے، اور پورے مدرسے کی تلاشی لیتے ہوئے ایک چھری چاقو کسی طالب علم سے برآمد نہیں۔ آج تاریخ واقف ہے کہ وہ کعبۃ اللہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے، پوری کائنات کے لوگ اس جگہ پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارے کا سربراہ اور محترم کسی درسگاہ کی بنیاد رکھتا ہے، اسے سب سے پہلی دعا یہی مانگنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میری چھوٹی سی کاوش اور محنت کو قبول منظور کر لے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ جس کی محنت کو قبول کرتے ہیں اس کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرا دیتے ہیں، لوگوں کے دل اس طرف پھیر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال اللہ تبارک وتعالی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، ہو جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا یہ ہے اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، جسے شمس الضحیٰ کہیے جسے بدر الدجا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں جہاں قرآن سینوں میں، یہ عظمت باطل دھوکا ہے یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں تو یہ کسرا و قیصر کچھ بھی نہیں، اغیار سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں، اسلام اگر منظور نہیں قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پہ یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت سے نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھیں، انشاءاللہ برکت ہوگی مجمع میں، اور بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پھر ایک بار درخواست کرتا ہوں
जो लोग मदरसे के अहाते में जलसागाह से बाहर इधर उधर फिर रहे हैं अपने जलसे को खराब करने के मुतरादिफ है और ये इदारे की अजमत और इस तकरीब के तकद्दुस के खिलाफ है। इदारे की इंतजामिया को चाहिए कि वो अपने कारकुनों को कहकर इन तमाम हजरात को या तो जलसागाह में बिठा दें या कम अज कम मदरसे से बाहर निकाल दें। मदरसे में बातें करना, शोर शराबा करना, टोलियां बनाकर खड़ा होना, ये जलसे के तकद्दुस के खिलाफ है। फिलफौर सबसे पहले यही काम करें, जितने लोग सामने खड़े सब हट जाए, सारे के सारे लोग ये जो बाहर खड़े हुए एक तरफ हो जाएं, या अंदर आ जाएं या बाहर चले जाएं मदरसे से, सब के सब फिलफौर चले जाएं। कतन ऐसे आदमी की हमें जरूरत नहीं जो हमारा जलसा खराब करे। जल्दी जल्दी ये सामने जितने खड़े हुए कोई आदमी यहाँ पर न खड़ा हो, या बिल्कुल बाहर निकल जाए या मदरसे के अंदर आ जाए, और जल्दी 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 जल्दी। कोई अब तालिब इल्म कोई आदमी इन बाहर इधर उधर न फिरे, या तो पिंडाल में आ जाए या मदरसे से बिल्कुल बाहर निकल जाए। आपने अभी दरस हदीस सदर शेखुल हदीस साहब दामत बरकातुहुल्लाह अलैह से सुना, उलमा ने किताबों में मसला लिखा है कि जब तक किसी में तलब दीन न हो उसको जबरन उसकी कान में दीन की बातें ठोसना ये गुनाह है। अगर वो बेतवज्जही से सुनता है तो कुफर का मुतरादिफ हो जाता है, इर्तिकाब कुफर करता है, सुनाने वाला गुनाहगार होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी गुफ्तगू से आप भी मुजरिम हो और मैं भी मुजरिम हूं। या तो इत्मीनान से तशरीफ रखिए या जलसागाह से बाहर निकल जाए। इदारे के तकद्दुस के बिल्कुल खिलाफ है जो कुछ तुम कर रहे हो। और ये मदरसे के तलबा ने भी बिल्कुल गलत काम किया है कि पगड़ी बांध कर सब चले गए, हालांकि इनका फर्ज है जब तक जलसे की दुआ न हो उन सबको यहाँ पे बैठना चाहिए। हज़रत शाह साहब से मेरी दरखास्त है खुद भी तशरीफ लाएं, इन तमाम लोगों को पाबंद करें। सब हज़रात फिर मोहब्बत से दुरूद शरीफ मैं अपनी गुफ्तगू करता हूँ। दुरूद शरीफ जो ऊंची आवाज से पढ़ते हुए जरा करीब करीब तशरीफ ले आए। मुझे मजमे से कोई सरोकार नहीं होता, 10 आदमी हो तो मैं उनको अपनी बातें पूरी सुनाया करता हूँ। सब हज़रात तशरीफ ले आए, करीब करीब आ जाए। सबके सब तशरीफ लाए, अल्लाह जज़ा खैर दे। लायके सत ताज़ीम व तकरीम काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, जिस हसीन इज्तिमा में मैं और आप शरीक हैं, बुखारी शरीफ कुतुब अहादीस में सबसे आला दर्जे की हदीस की किताब है। उसका आखिरी सबक रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत शेखुल हदीस उस्ताद मुहतरम मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहुल्लाह अलैह ने उस पर बड़ी हसीन, तवील और तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। और उसी के ज़िमन में दीनी मदारिस के हवाले से हज़रत शेखुल हदीस ने बहुत अच्छी गुफ्तगू जो इस वक्त और मौके की मुनासबत से अहमियत रखती थी उस पर सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई है। मैं अपना नाम लिखाने के लिए दीनी मदारिस के हवाले से 2-3 बातें आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ, उस पर आपकी तवज्जो की अशद जरूरत है। उनमें सबसे पहली चीज दीनी मदारिस की बुनियादी हैसियत और दीनी मदारिस की एक तारीखी हैसियत कि ये आज दरसगाह जो आप जिसमें बैठे हैं, जामिया फारूक आजम हो, दारुल हो, जामिया इमदादिया हो, जामिया इस्लामिया हो, मदीनतुल इल्म हो, अशरफुल मदारिस हो, या दीगर दीनी मदारिस जितने पाकिस्तान में है या आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ इदारे हैं, इन इदारों की असल बुनियाद क्या है? या यूं समझ लीजिए कि इन इदारों की इब्तदा कहाँ से हुई। हमारी एक सनद है, हमारा एक सिलसिला है, हमारा एक नसब है, हमारा एक ताल्लुक है। जो कौम और जो लोग अपनी इस हकीकत और असलियत से वाकिफ नहीं होते, यकीनन वो लोग धोखा खाया करते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि इन मदारिस का ताल्लुक काबतुल्लाह की उस दरसगाह से है जिसकी बुनियाद जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल मुवहिदीन सैयदना इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी। ये मोहम्मद अरशद साहब मौलाना उबैदुल्लाह अजहर साहब के ड्राइवर हैं, निसार कॉलोनी से आए हैं। वो जहाँ कहीं हूँ वो जल्द अज जल्द उनके पास पहुँच जाएं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। मोहम्मद अरशद साहब जो मौलाना उबैदुल्लाह अजहर साहब के ड्राइवर हैं, वो जल्दी जल्दी उनके पास पहुँचे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त काबतुल्लाह की बुनियाद रखी उस वक्त दुआ मांगी। कुरान मजीद में इब्राहीम खलील की 3 दुआओं का जिक्र किया है। उनमें सबसे पहली दुआ ये थी कि वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब खलील और इस्माईल
दोनों इस इदारे की बुनियाद रख रहे थे, अल्लाह के घर काबतुल्लाह की दीवारें खड़ी कर रहे थे। उनकी पहली दुआ ये थी कि तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह इस जगह को शर्फ कबूलियत अता फरमा। ये सबसे पहली दुआ थी। और इससे उलमा ने एक मसला लिखा है कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा अहम चीज काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत है। अल्लाह जिस चीज को कबूल फरमा ले, खलील ने जिस जगह इदारे की बुनियाद रखी वहां पर कोई शहर आबाद नहीं था, वहां पर कोई रौनक नहीं थी, वहां पर कोई दुनियावी बहारें नहीं थी, बल्कि एक जंगल सुनसान बियाबान वीरान जगह थी जहां पर इब्राहिम काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। और वह कोई पुख्ता और हसीन इमारत नहीं बनाई गई, बल्कि तकब्बल का माना भी उलमा ने यही लिखा है, ऐ अल्लाह ये छोटी सी काबिश, हल्की सी मेहनत जो मेरी इस्तेदाद के मुताबिक थी, इतना करना मेरा काम है। इसको इसके साथ तू अपने शाया निशान इसे कबूल करना। ये तेरी अजमत और तेरे तकद्दुस और ये तेरी करम नवाजी है। ऐ अल्लाह तेरी जितनी ऊंची जात है, तू जितने ऊंचे मकाम का मालिक है, ज़ुल मजीद है, फ़ाअलुल लिमा युरीद है, कादिर मुतलक है, खालिक है, अल्लाहुल ग़ुयूब है, सारी कायनात का मालिक और मौला है। अल्लाह ये मकान तेरे शाया निशान तो नहीं, ये छोटे छोटे से पत्थर चुनकर, ये मैंने पत्थरों पे पत्थर रखकर इस मकान को बनाना तो मेरे बस की बात है, लेकिन इसको शर्फ कबूलियत अता करना, इसको अपने यहाँ करीब कबूल करके इसको एजाज बख्शना, लोगों के दिलों में इसकी अहमियत डालना। अल्लाह ये तेरे हाथ में है, इतनी मेहनत करना मेरा काम है, इसको अज़मतें देना तेरा काम है। चनाचे आज तारीख वाकिफ है कि वो काबतुल्लाह मर्जा खलाइक बना हुआ है। पूरी कायनात के लोग उस जगह पर हज करने के लिए जाते हैं, अपने लिए सादत समझते हैं, इबादत समझते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई इदारे के सरबराह और मोहतमिम किसी दरसगाह की बुनियाद रखता है, उसे सबसे पहली दुआ यही मांगनी चाहिए कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह मेरी छोटी सी काबिश और मेहनत को कबूल मंजूर कर ले। चनाचे उलमा ने लिखा है, अल्लाह जिसकी मेहनत को कबूल करते हैं उसकी तरफ लोगों की तवज्जो मबसूल करा देते हैं, लोगों के दिल उस तरफ फेर देते हैं, दुनिया उस तरफ माइल होती है, वहां से फयूजात हासिल करती है, इल्म हासिल करती है, कमालात हासिल करती है। काबतुल्लाह जब बनाया गया था यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, लेकिन इस काबतुल्लाह की तामीर के बाद, खलील की इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसको जो शर्फ कबूलियत अता किया है। आज पूरी दुनिया में जितनी दीनी दरसगाहें हैं, जितनी मसाजिद है, जितनी मकातिब है, जितनी मदारिस है, ये काबतुल्लाह के इल्म के बरकत से ये निकलने वाली वो शाखें हैं, ये फूटने वाले वो समरात और फल हैं जो पूरी दुनिया में फैले हैं। ये अल्लाह ने उसे शर्फ कबूलियत अता किया है। यही वजह है हदीस में आता, अल्लाह जिसको कबूल करते हैं, जिसे अपना लाडला और प्यारा बनाते हैं, उसकी मोहब्बत का ऐलान हामिलीन अर्श फरिश्तों में करते हैं। वो फरिश्ते आसमानों के फरिश्तों को कहते हैं, वो फरिश्ते जमीन के फरिश्तों में ऐलान करते हैं, जमीन के फरिश्ते अवाम नास में ऐलान करते हैं, लोगों की तवज्जो उस तरफ हो जाती है। आज काबतुल्लाह जिस जगह मरकज इल्म व अमल हजरत इब्राहिम की खलील की दुआ का मरकज बना हुआ है, हमने नहीं देखा, लेकिन किली रोचार उस तरफ है, जो नहीं पहुंचा उस जगह से मोहब्बत करता है, जिसको पता नहीं वो भी उससे अकीदत रखता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस दरसगाह को अल्लाह शर्फ कबूलियत अता करते हैं, उसका लोगों के दिलों में उसका एहतराम बिठा देते हैं, उसकी मोहब्बत पैदा कर देते हैं, दुनिया का रुझान उस तरफ हो जाता है। यही वजह है आज दारुल देवबंद को देखिए, हमारे इन मदारिस को देखिए। मुझे आज से चंद साल कबल जब हजरत शाह साहब इस दरसगाह में तशरीफ लाए थे, ये एक बिल्कुल सुनसान बियाबान जगह थी और यहाँ पर कोई इमारत नहीं थी, एक छोटी सी छप्पर नुमा मस्जिद बनाई गई थी, उस जगह पर इसकी इब्तिदा हुई थी। मुझे वो दौर भी याद है। आज इतनी हसीन और खूबसूरत इमारत, इतनी तलबा की तादाद, हर साल इतने कुरान मजीद के बच्चों का हाफिज होना, इसी तरीके से बच्चों का हाफिजा होना, ऐसे नौजवानों का आलिम और फासिल होना, ये अल्लाह के यहाँ कबूलियत की अलामत है। और मैंने एक बहुत बड़े शेख से जुमला सुना, जैसे हजरत शेखुल हदीस बता रहे थे, अल्लाह जिस आलिम के इल्म को कबूल करते हैं, अल्लाह उसके खानदान में इल्म की रोशनी फैलाते हैं। जैसे आलिम का इल्म कबूल होता है, अल्लाह उसकी नस्लों को दीन की तरफ माइल कर देते हैं। जैसे आलिम को अल्लाह कबूल करते हैं, अल्लाह उसके खानदान में दीन की रोह पैदा करते हैं। और अगर वो आलिम अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता, अल्लाह उसके खानदान से इल्म को उठा लेते हैं। चनाचे हमारा तजर्बा यही है कि जिस बुजुर्ग को अल्लाह ने कबूल किया है, उसकी नस्लों में दीन को जारी कर दिया है, और ये अल्लाह के यहाँ कबूलियत की अलामत है। सिंध के बहुत बड़े आलिम पीर अब्दुल करीम बेर शरीफ वाले रहमहुल्लाह, एक मरतबा में उनको मिलने के लिए गया। मुझे उन्होंने खुद कहा कि मौलवी साहब सिर्फ पास करते हो या कोई कुरान का दर्स भी बनाया हुआ है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मदरसा है, वहाँ पर बच्चे भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तालीम होती है, दीन की बातें पढ़ाई जाती है। एक जुमला कहा, फरमाया जो आलिम मदरसा बनाता है वह अपना ईमान भी महफूज करता है, अपने खानदान का ईमान भी महफूज कर लेता है। ये मदारिस हिफाजत ईमान का जरिया है।
और आप याद रखिए इन दरसगाहों की बुनियाद जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल मुवहिदीन इब्राहिम खलीलुर रहमान ने रखी। आज आमतौर पर एक जुमला जाहिल और नादान लोग कहते हैं ये मुल्ला बड़े बुनियाद परस्त लोग हैं, और इसमें कोई शक नहीं, हम बुनियाद वाले लोग हैं। हमारी बुनियाद में खलील की मेहनत कार फरमा है, हमारी बुनियादों में इस्माइल की काबिश है, हमारी बुनियादों में हाजरा की दुआएं है, हमारी बुनियादों में इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है, हमारी बुनियादों में सिद्दीक की कुर्बानी है, इस दरसगाहों की बुनियादों में फारूक की मेहनत है, इन दरसगाहों की बुनियादों में उस्मान और हैदर और करार तलहा जुबैर साद और सईद सहाबा का इशार है, उनके जज्बात और कुर्बानी है। और जो शख्स जिसकी कुर्बानी जिसकी बुनियाद इतनी मजबूत हो कि खलील बुनियाद रख रहा हो, बुनियाद इतनी मजबूत हो कि इस्माइल ईंटें दे रहा हो, बुनियाद इतनी मजबूत हो हाजरा कारा उठा रही हो, बुनियाद इतनी मजबूत हो मोहम्मद करीम पढ़ा रहे हो, बुनियाद इतनी मजबूत हो साहबा बैठकर पढ़ रहे हो, और उस दरसगाह की बुनियादों को कोई नहीं हिला सकता। इसलिए हम बुनियाद परस्त होने पर फख्र करते हैं। हमारी बुनियाद इतनी मजबूत है, और जिसकी कोई बुनियाद न हो, खोखलापन हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इन दरख्तों की बुनियादें हैं, जितने झोंके आए, आंधी आए, हवाएं आए, ये मजबूत रहेंगे, और जिस दरख्त की बुनियाद मजबूत न हो वो जमीन पे गिर जाता है। और फिर मैं ये भी कहता हूँ बुनियाद होना हलाली का काम है, हम हलाली नस्ल है, हमारा एक नस्ब है, हमारा एक सिलसिला है, हमारे एक असातिज़ा की फहरिस्त है, हमारे मशाइख हैं जिन लोगों ने हमें पढ़ाया है, वहां तक हमारा एक नस्ब पहुंचता है। वह जिसकी बुनियाद नहीं होती वो हलाली कहलाया करता है। हम इस पर नाज करते हैं कि कुफ्र भी हमारे हलाली होने का इकरार करता है। मेरे कदर दोस्तों, सबसे पहली चीज इदारों की बुनियादी हैसियत, फिर वही दरसगाह जहां खलील ने इसकी बुनियाद रखी। सिर्फ बुनियाद नहीं, खलील की दूसरी दो दुआओं ने तीन चीजें और बताई। खलील ने अल्लाह से तालिबुल इल्म भी मांगे, उस्ताद भी मांगा, निसाब तालीम भी मांगा, तलबा मांगे कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ऐ अल्लाह, मेरी इस काविश को कबूल कर, इस मेहनत को मंजूर कर, मुझे और मेरी औलाद को अपना फरमाबरदार बना, उम्मत मुस्लिमा में शामिल कर, और फिर हमें एक उम्मत अता कर जिसका नाम उम्मत मुस्लिमा, फरमाबरदार उम्मत, वफादार उम्मत, इताअतशार उम्मत, खिदमतगुजार उम्मत, जानिसार उम्मत हो। उम्मत मुस्लिमा तस्लीम करने वाले, मानने वाले। गोया खलील कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, मदरसा तो बनाया है, यहाँ पर पढ़ने के लिए वो तालिबुल इल्म हो जिसमें मादा तस्लीम हो, सरकश न देना, बेहुदा न देना, बेअदब न देना, बेदीन न देना। वो हो जिसको उम्मत मुस्लिमा कहा जाए कि मानने वाला हो, फर्माबरदारी करने वाला हो, जानिसारी करने वाला हो, और इतना बड़ा फर्माबरदार हो। उस्ताद इशारा करे, ये अपनी जान का नजराना पेश करे, पैगंबर इशारा करे, ये अपने आप को कटाने के लिए तैयार हो जाए, इतना बड़ा फर्माबरदार हो। अगर वो बैठने को कहे ये बैठ जाया करे, इतना बड़ा फर्माबरदार हो। क्या उसकी ताबेदारी में अपने लिए सादत और इबादत समझता हो, इतना बड़ा फर्माबरदार हो। इसकी गुलामी का आलम ये हो कि ये अपने आका के बगैर एक कदम भी न हिला सके। मुझे ऐसे शगिर्दों की तादाद चाहिए, ऐसे तालिब इल्म इस दरसगाह में चाहिए जिनके अंदर फर्माबरदारी हो, उस्ताद की गुलामी करने वाले हो, उस्ताद के नाफरमान न हो। मैं तादीसन पर नेमत कहता हूँ, इस वक्त दीनी मदारिस के तलबा जो इन दरसगाहों में इल्म दीन पढ़ते हैं, जो यहाँ पर पढ़ते हैं, अपने असातिज़ा की जो फर्माबरदारी करते हैं, ये दर हकीकत इब्राहिम खलील की दुआ है जो इन तलबा पे असर कर रही है। वरना हम जो स्कूलों यूनिवर्सिटियों में रोजाना मुशाहिदा करते हैं कि अगर इदारे की चार दीवारी में उस्ताद लेक्चर दे रहा है, मुअल्लिम है, बाहर निकलने के बाद उससे उस्ताद शागिर्द का रिश्ता मुनक़ते हो जाता है, ताल्लुक खत्म हो जाता है। बारहा देखा गया है, क्लास में उस्ताद खड़ा है, शागिर्द बैठा है, इसने कभी नहीं कहा उस्ताद जी आप मेरी जगह पे तशरीफ रखे। लेकिन जो दीनी मदारिस है, उम्मतन मुस्लिमतन लक का लफ्ज़ कहता है कि अल्लाह ऐसे शागिर्द देना जो फर्माबरदारी करने वाले हों। हमने ये तजर्बे के तौर पे देखा है, 18-20 साल का अगर नौजवान उस्ताद पढ़ाने के लिए बैठ गया है, सामने बैठा हुआ तालिबुल इल्म वो सफेद रीछ क्यों न हो, उसमें फर्माबरदारी का जज्बा होता है, उस्ताद के इशारे की देर है, वो अपना उसके हुक्म की तामील करता है। इसलिए कि खलील ने भी यही दुआ मांगी थी, और खलील की दुआ का नतीजा है आज तक दीनी मदारिस में सबसे ज्यादा तस्लीम का सबक पढ़ाया जाता है। एक जुमला आम तौर पर जाहिल और नादान लोग कहते हैं, मदारिस वाले दहशतगर्दी सिखाते हैं, और कुरान कहता है कि मदारिस में पढ़ाने वाले तस्लीम और रज़ा सिखाते हैं। हमने तालिबुल इल्म को अदब दिया है, बेअदबी नहीं, ताज़ीम सिखाई है, बदतमीजी नहीं, हिदायत का रास्ता बताया है, तेरा रवि का शिकार नहीं।
आज आपके इतने बड़े शहर में सरी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, पीसू कॉलेज भी मौजूद है। कौन सा इदारा का यूनिवर्सिटी में चाहिए, कौन सा कमरा है जिसमें असला नहीं होगा, कौन सी जगह है जहाँ शराब पी जाती हो, और तुम्हारा लड़का मैट्रिक करके अभी कॉलेज में आता है, तुम उस वक्त भी उसको पुलिस और फौज की ट्रेनिंग देना सिखाते हो, जब तुम ऐसे तरबियत इब्तदा यहीं से करते हो। फिर ये 14 पढ़ने के बाद 16 पढ़ने के बाद दर दर के धक्के खाता है, इनको नौकरियां नहीं मिलती। फिर जो तुमने इनको 2 साल तरबियत दी थी, इनको ट्रेनिंग दी थी, इनको असला सिखाया था, फिर उस असले सीखे हुए से ये नाजायज फायदा उठाकर ये डाके न डाले, चोरियां न करे, बदमाशियां न करे, मुल्क का अमन तहवाला न करे, और क्या करेंगे? जिनको हमने पढ़ाया और सिखाया है, उस्ताद का अदब सिखाया है, जिनको हमने पढ़ाया सिखाया है, तस्लीम और रजा का सबक दिया है, जिनको हमने पढ़ाया सिखाया है, उन्हें अपने अकाबिर पे एतमाद सिखाया है। आज तक इतनी अरसा बीत चुका है, मदारिस पे इल्जाम तुमने लगाया, दहशत करते हैं, इतने 100 मदारिस बंद कर दिए जाएंगे, इतने इदारों का एहतमाम खत्म कर दिया जाएगा। और साल की दुआ के नतीजे में इन इदारे का तकद्दुस बहाल है, अल्लाह ने इनको अज़मत अता की है, तो वहां दहशतगर्दी सिखाते हो, हम अमन का सबक सिखाते हो। आओ जरा मुवाज़ना करो दुनियावी इदारों का और दीनी दरसगाहों का, इन मदारिस का और कॉलेज यूनिवर्सिटी का। हज़रत शेखुल हदीस दामत बरकातुहुल आलिया मेरे उस्ताद मुहतरम हैं, मैंने शेख से मिस्ताद पढ़ी थी, और वाक़तन मेरे असातिज़ा में ये वाहिद उस्ताद हैं जिनकी जलालत और रोब इतनी है कि मैंने कभी इनके सामने खड़े होकर तकरीर नहीं की। इसलिए मैंने हज़रत शाह साहब से कहा, मैंने कहा उस्ताद जी सबक पढ़ा कर चले जाए, फिर तकरीर करूंगा, या पहले मैं तकरीर कर लूंगा फिर बाद में तकरीर करूंगा। मैं एक दरखास्त आपसे करना चाहता हूं, कभी बैठकर मुवाज़ना करो उन स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों ने तुम्हें क्या दिया है, और इन फकीरों ने इन दरगाहों से तुम्हें क्या दिया है, तुमने वहां पे कितना खर्च किया है, यहाँ पर तुम क्या खर्च करते हो, उनको क्या मराहत देते हो, इनको तुम क्या मराहत देते हो, नतीजे में वहां क्या काम हो रहा है, यहाँ क्या काम हो रहा है। अगर आप इसका मुवाज़ना करें, आपके सामने ये हकीकत खुल कर आएगी। इदारे तुमने भी बनाए, इदारे हमने भी बनाए, तुमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी, हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी, हमने अपनी जिम्मेदारी आजान देना समझी है, हमने अपनी जिम्मेदारी नमाज का एहतमाम समझा है, हमने अपनी जिम्मेदारी बच्चों को कुरान पढ़ाना समझा है, हमने अपनी जिम्मेदारी इनको पैगंबर का दीन सिखाना समझा है, हमने अपनी जिम्मेदारी इनके अखलाक की इस्लाह समझी है, हमने अपनी जिम्मेदारी इनकी तरबियत सीखी है, समझी है। जो तुमने जिम्मेदारी संभाली है, तुम अपने मामलात पे 100% नाकाम हो, हम अपने अज़ाइम में अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब और कामरान हैं। मुशाहिदा करो, आपके शहर में मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर है मेडिकल कॉलेज है, पंजाब मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मौजूद है, लाहौर में है, हमारे यहाँ बहावलपुर में है, मुल्तान में है, तकरीबन हर बड़े शहर में मेडिकल कॉलेज है। 4 साल तक तालिब इल्म वहां पढ़ते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं। भाई किस लिए तैयार कर रहे हो, इसलिए तैयार कर रहे हैं इंसानी हमदर्दी, इंसानों की जान महफूज होगी, बीमारों की बबाकुलसी होगी। नतीजा क्या निकलता है, आज तुमने जितनी अस्पतालें बनाई हैं, बेशक फैसलाबाद के किसी अस्पताल में आज रात के 10:30 बज रहे हैं, इस वक्त चले जाओ, तुम्हें नजर ये आएगा कि वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं, मरीज सिसके भर रहा है, हिचके ले रहा है, नर्कोसिस के आलम में है, जाकुनी की कैफियत में है, जिंदगी मौत के कशमकश में है, वो मर रहा है, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर इलाज भी करता है, तो ये कहता है यहाँ अस्पताल में क्या इलाज होगा, प्राइवेट मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा वहां पर इलाज करूंगा, वहां देखूंगा, इतनी फीस लगेगी, तब ऑपरेशन करूंगा, इतना पैसा खर्च होगा, तब तुम्हारा इलाज होगा। और जिसको तुमने पैदा किया है वो खुद गरज बना है, वो तमा वाला बना है, वो लालची बना है, मरीज दम तोड़ता है, इसको एहसास नहीं होता। और जिनको हमने तैयार किया है, ये मौलाना खालिद साहब इस इदारे के उस्ताद बैठे हैं, दीगर असातिज़ा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, पूछो इनको कितनी हम तनख्वाहें देते हैं। 2-2.5 हजार किसी की तनख्वाह होगी, 3 हजार किसी की तनख्वाह होगी। जितना बड़ा वक्त हम इनसे लेते हैं, जिस काम पर इनको मामूर करते हैं, अल्लाह के फजल और करम से 24-24 घंटे बैठकर ये कुरान और सुन्नत के मौती पढ़ाते
करते हैं। मेरे इल्म में मैं पूरे मुल्क का सर्वे करता रहता हूँ। इस वक्त भी तकरीबन 15-20 ऐसे इज्तिमा में शरीक हो चुका हूँ जहाँ इख्तिताम बुखारी की तकरीबात थी जैसे आज की तकरीब है। ऐसे ऐसे मदरसे मेरे इल्म में है जिनमें 8-8 महीने गुजर चुके हैं, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली, न उस्ताद ने कभी खड़े होकर ये कहा हम एहतजाज करते हैं, न उन्होंने कोई तहरीक चलाई है, न मुखालफत की है, न तलबा से ज्यादती की है कि हम तुम्हें सबक नहीं पढ़ाते, हमें तनख्वाह क्यों नहीं मिलती, न मोहतमिम के सामने शिकवा किया है। अल्लाह की रजा पर राजी होके बैठे हैं कि जब अल्लाह देगा ले लेंगे, लेकिन कुरान तो हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। किताब सुन्नत को सीने से लगाया है। रब्बे मोहम्मद की कसम, यही लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर कहेंगे अल्लाह तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने एलिमेंट्री कॉलेज बनाए, असातिज़ा तैयार हो, क्या होगा? निज़ाम तालीम बेहतर होगा। और हमारे निज़ाम तालीम को बेहतर करने की सोचने वालों, अपना निज़ाम तो सोचो। हमसे बेहतर निज़ाम तालीम कोई दे नहीं सकता, और तुमसे निकम्मा, नालायक, गैर अहमियत वाला बेदीनी का निज़ाम दुनिया में और कहीं मिल नहीं सकता। तुम हमारी इस्लाह करते हो, हमें कंप्यूटर के झांसे देते हो, हमें साइंस और रियाजी और मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर देते हो, अपनी दरसगाहों में दाखिल करो। तुम सोचो जिन इदारों को तुमने संभाला है वहां कितनी तरक्की की है। नाराज मत होना, साल के बाद नताए जाते हैं। रईसुल विफाक शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब दामत बरकातहुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, साल का सालाना नतीजा हमारे विफाकुल मदारिसिल अरबिया का भी आता है, तुम्हारे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का भी आता है। जितना सख्त इम्तिहान हम लेते हैं तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जितने सख्त नंबर हम लगाते हैं तुम्हारे ख्वाब ख्याल में वो बात नहीं आ सकती। और अल्लाह के फजल और करम से पूरे विफाक का 80 से 90-95% तक नतीजा पूरे पाकिस्तान में कामयाबी का आता है। हमारे मुल्क के ऐसे मदारिस भी हैं जिनका 100% नतीजा कामयाब कामरान आता है। और तुम्हारे कॉलेजों की हालत ये है, स्कूलों की हालत ये है, तुम्हारे तालीमी इदारों की हालत ये है। हमसे मख्फी नहीं, हम भी उन अखबारों को पढ़ते हैं जिनमें तुम्हारे रिजल्ट और गजट शाये होते हैं। हमारे सामने है कि 80% लड़के फेल निकलते हैं, 20% तो मुश्किल कामयाब होते हैं। इसके हवाले से गुफ्तगू है, इस तरफ तवज्जो करें। आप सोचे तुम क्या कर रहे हो, हम इस वक्त इन दरसगाहों में बैठकर क्या कर रहे हैं। वहां पर मराद कितनी है, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं इस मजमे में। कतन तनकीदी लहजा मकसूद नहीं, इसराह की नीयत से गुफ्तगू कर रहा हूं। वहां पर निजाम तालीम में सालाना बजट पे गवर्नमेंट जो तालीम के लिए रकम मुख्तस करती है उसका 100% हिस्सा उस निजाम तालीम पे खर्च होता है। 100 में से 1 रुपया भी कुरान के लिए नहीं रखती। गोया तुम्हारे निजाम तालीम में कुरान की तालीम तालीम ही नहीं, सुन्नत की तालीम तालीम ही नहीं, हदीस की तालीम तालीम ही नहीं, फिक़ह की तालीम तालीम ही नहीं। और वहां भी हालत यह है, बच्चा जब तक प्रोफेसर के पास ट्यूशन में पढ़े इम्तिहान में कामयाब नहीं होता। और वहां हालत यह है कि पिछले दिनों पाक फौज ने सर्वे किया था, अल्लाह के फजल और करम से मेरे यहाँ काफी दोस्त बैठे हैं, सिर्फ जिला मुजफ्फरगढ़ में 700 स्कूल ऐसे थे जिन स्कूलों की इमारतें थी, सालाना बजट थे, पैसे खर्च होते थे, तनख्वाहें वसूल होती थी। मौके पे जाके देखा तो उस्ताद भी कोई नहीं, तालिब इल्म भी। 700 स्कूल एक जिले में, पूरे मुल्क में तुमने तालीम का दिवालिया निकाला है। अब तुम मदारिस के दर पे हो। जाहिलो, तुम्हें क्या पता दीनी मदारिस कितनी बड़ी मेहनत करते हैं। फिर तुमने मदारिस को क्या दिया है, और लोगों के सामने झोली फैला कर भीख हम मांगते हैं, दस्ते सवाल हम फैलाते हैं। तुम्हारे पास बच्चा पढ़ने के लिए आए, मेरा एक अपना अजीज रिश्तेदार है, आजकल उसने वो BSc में दाखिला लिया है बहावलपुर में। मैंने उससे कहा पागल हो गए और दीनी मदरसे में आ जाओ, इतने ज़हीन हो, इल्म पढ़ लो। नहीं, वहां जाना है। उसके बाप ने घर की भैंस बेची, उसकी वालदा के जेवरात बेचे गए, सिर्फ इसलिए कि पूरे साल का खर्चा जनाब यूनिवर्सिटी वाले पहले जमा करेंगे हॉस्टल की रिहाइश के लिए, बाद में इसको वहां पर दाखिला मिलेगा। और वो जनाब पहले उनको तय करना पड़ेगा, दरमियान में छोड़ जाए, कामयाब हो नाकाम हो, उसका मसला। और जो तुम हमें देते हो
होश से सुनो, हम इन मदारिस के तलबा को खाने का इंतजाम करके देते हैं, रिहाइश का इंतजाम करते हैं, किताबों का इंतजाम करते हैं, तालीम का इंतजाम करते हैं, इनकी तदरीस का इंतजाम करते हैं, इनमें जिन बच्चों का मिजाज हो उनको मैदान तबलीग में लाने का इंतजाम करते हैं, जिनका इस फद से मुनासबत हो मुनाज़रे में लाने का इंतजाम करते हैं। जो बच्चे इतनी जाज़बियत रखते हो और अपने अंदर इतनी सलाहियतें बेदार रखते हो, हम उनको उन सलाहियतों में उजागर करने के लिए उन मैदानों में भेजते हैं। जो बेचारे मुस्तहिक हो उनके लिबास का इंतजाम करते हैं। और तुम हमें छोटे बच्चे दे के जाते हो, हम पाल के तुम्हें देते हैं, तुम जाहिल देते हो, हम आलिम बना के देते हैं, तुम बेहुदा देते हो, हम तुम्हें बाअदब बना के देते हैं, तुम नाकारा देते हो, हम कारामत बना के देते हैं। मैं कह दूं तो बेजानी, तुमने आंखों से नबीना हमें दिया, हमने कारी फतेह मोहम्मद बना के दिया, तुमने पाँव से माजूर हमें दिया, हमने तुम लोगों को बुरा ज़ईफ़ुल उमर शेखुल हदीस मोहम्मद ज़करिया कादरी बना के दिया, तुमने हमें नाई का बेटा दिया, हमने किफ़ायतुल्लाह देहलवी बना के दिया, और तुमने हमें शेख का पोता दिया, हमने तुम्हें अहमद अली लाहौरी बना के तैयार करके दिया है। तुम लोगों ने हमें और गरीब का बेटा दिया है, हमने शेखुल तफसीर शेखुल हदीस बना के दिया है, तुमने मोची का बेटा दिया है, हमने हबीबुल्लाह सहीवाल बना के दिया है, तुमने आराई का बेटा दिया है, हमने खैर मोहम्मद फुलहमजरी खैर मोहम्मद जहलंदरी अब्दुल्ला दरखास्ती बना के दिया है, तुमने बलोच का बेटा दिया है, हमने अब्दुल शकूर दीनपुरी अब्दुल हादी बना के दिया है, तुमने सैयद का बेटा दिया है, हमने अनवर शाह कश्मीरी सैयद यूसुफ बिन नूरी बना के दिया है, और तुम लोगों ने हमें गरीब नादार दिए हैं, हमने हाफिजुल कारी बना के दिए हैं, तुम लोगों ने जाहिल दिए हैं, हमने दीन के आलिम बना के दिए हैं। तुम लोग क्या देते हो, हम क्या देते हैं? हमने तुमसे कभी भीख नहीं मांगी, अपने रब पे यकीन करके निजाम चलाते हैं। जब हम तुमसे लेते नहीं तो तुम हमसे हिसाब मांगने के कोई इस्तेहकाक नहीं रखते। इदारे भी हमारे हैं, चलाएंगे भी हम, जो इनको मैली आंख से देखेगा। रब बड़ा कादिर है। 12 अक्टूबर तारीख का अहम तरीन दिन है, जो आज से 2-3 दिन पहले गुजरा है। 1 साल कबल इसी 12 अक्टूबर को मौलाना खालिद बैठे हैं, ये मेरे दोस्त वहां के रोड पक्का के बैठे हैं, इनसे पूछिए। जामिया बाबुल उलूम एक शेखुल हदीस है हमारे मौलाना अब्दुल मजीद, उनके मदरसे में वहां पर 6 ट्रक पुलिस के आए, मदरसे का घेराव किया गया, अंदर दाखिल हुए, असातिज़ा को धक्के दिए गए, तलबा की सवाल की तलाशी ली गई, औरतों को निकाला गया वहां से, और पूरे मदरसे की तलाशी लेते हुए एक छुरी चाकू किसी तालिब इल्म से बरामद नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह तेरी तकदीर के फैसले के सदके जाऊं, दोपहर के वक्त हमला हो रहा है, जोहर के बाद नवाज शरीफ उस वक्त शिजाबाद पहुंच रहा है, असर के करीब जलालपुर पीर वाला पहुंचता है, 6 बजे के करीब वहां से वापस मुल्तान पहुंचता है, 7 बजे इस्लामाबाद पहुंच रहा है, मगरिब का सूरज बाग पे गुरूब होता है, जेल की कोठरी में पहले पहुंचता है। इन मदारस को मैली नजर से मत देखो। और एक बात कहता हूं, पूरी तवज्जो से सुनना, सब उलमा बैठे हैं, कुरान का मुहाफिज कौन है? ऊंची बात से मैंने इसलिए आयत वो पढ़ी जिसमें रब्बे कायनात ने ये कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को नाज़िल भी हम करते हैं, इसके मुहाफिज भी हम। इसका मुहाफिज कौन है? ऊंची बात से। और एक और बात याद रखें, गौर से सुने, अल्लाह की सिफत है वहुवल अलियुल अज़ीम, अल्लाह बड़ी अजमत वाले। क्या है भाई? ऊंची बात से क्या है? अरे बोलो क्या है? बड़ी अजमत वाले हैं। अब उस अजमत वाले की जबान से जो कुछ निकला है उसको भी कुरान ने कहा, वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। महबूब, जब मैं खुद रब अजमत वाला हूं तो मुझसे जो कलाम निकले वो भी, सारे बोलो ऊंची 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 बात से, वो भी अल्लाह अजमत वाले, उसका कलाम भी, अल्लाह इज्जत वाले, उसका कलाम भी, ऊंची बात से, उसका कलाम। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जत रब के कब्जा कुदरत पे है, हकीकी इज्जत अल्लाह की है। और फिर अल्लाह के जो ज़बान से कलमे निकले हैं वो कुरान कलाम है। जैसे अल्लाह अजीज है उसका कलाम अजीज है, जैसे अल्लाह अजीम है उसका कलाम अजीम है। फिर मुझे कहने दो, वो अजीम कलाम जिस नबी पे आया, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, इस कलाम की निस्बत से वो नबी भी अजीम है। कह दो वो नबी भी अजीम भी है, अजीज भी है। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, अल्लाह भी अजीज, नबी भी अजीज, किताब भी अजीज,
अल्लाह भी अजीम, नबी भी अजीम, किताब भी अजीम। अब अगली बात समझना, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, और एक और मकाम पे है अल इज्जत लिल्लाहि व रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, और रसूल के बाद किन के लिए? सारे बोलो। हर उस मोमिन को इज्जत मिलेगी जो इज्जत वाले कलाम को हासिल करेगा, हर उस मोमिन को अजमत मिलेगी जो अजमत वाले कलाम को हासिल करेगा। जैसे अल्लाह ने कलाम की हिफाजत की है, जिन दरसगाहों में ये पढ़ा जाता है उन दरसगाहों की भी हिफाजत होती है, वह जो लोग पढ़ते हैं अल्लाह उनकी भी हिफाजत करता है, जिन सीनों में महफूज होता है उन सीनों की भी हिफाजत करते हैं। अगर खलील की हिफाजत करनी थी इब्राहिम की, आग के चीखे में जब जा रहे थे, और यारो जिस कपड़ों से गए उन कपड़ों की भी हिफाजत हुई, हालांकि कपड़े इब्राहिम नहीं थे, उसके जिस्म से वाबस्ता थे। आप कुरान तो नहीं है, ये दरसगाह कुरान तो नहीं है, इनकी निस्बत जो कुरान से है, इसलिए ये दरसगाह भी इज्जत वाली, यहाँ पे रहने वाले भी इज्जत वाले। और मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के नबी के लिए, और कुरान पढ़ने वालों के लिए। जो कुरान नहीं पढ़ता वो कायनात का जलील तरीन इंसान है, खा वो सरबराह ममलिकत हो, खा वो गवर्नर हो, खा वो वजीर आजम हो, खा वो जनरल हो, खा वो कर्नल हो, जिसका कुरान से ताल्लुक नहीं उससे बड़ा जलील कोई नहीं, और जिसको कुरान से निस्बत है उससे बेहतर अजीज कोई नहीं। जिसको अल्लाह इज्जत वाला कहे उसे कोई जलील कर सकता? ऊंची आवाज से। और अल्लाह जिसको जलील करे उसे कोई इज्जत दे सकता? जाहिरी तौर पर कहा सदर मुखालिफ है, इसकी छुट्टी करा दो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो बोलो। फिर सोचा चीफ जस्टिस मुखालफत करेगा, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा, इसको भी छुट्टी करा दो। फिर कवानीन बनाए कि खबरदार कोई आदमी अपनी पार्टी से नहीं निकल सकता, फिर मेरी पार्टी में तो आ सकता है, किसी और में नहीं जा सकता। सारे रास्ते अपने मजबूत किए और फिर कहा अना रब्बुकुमुल आला, भारी मनी डेट का मालिक हूं। जिसका दिमाग में फतूर हो ना, नहीं समझो, जिसके दिमाग में फतूर हो, नमरूद के दिमाग में फतूर आया था ना। मुझे एक जुमला कहने तो बड़ा अजीब आ गया। पहले मदरसे की बुनियाद इब्राहिम ने रखी थी और दरसगाह का पहला दुश्मन नमरूद था। नहीं समझो मेरी बात। दरसगाहों का पहला दुश्मन कौन था? बुनियाद रखने वाले कौन थे? इब्राहिम। अल्लाह ने नमरूद के दुश्मन को जो सजा दी, पता है वो क्या दी? मच्छर कहाँ गया? दिमाग में। अल्लाह इतने बड़े सरकश और बदमाश को मच्छरों से मरवाता है। नहीं समझो मेरी बात। किससे मरवाता है? इसलिए सर्दियों में भी कहता है जेल में मच्छर काटते हैं। और मच्छर कोई बड़ी मखलूक नहीं, समझो। मच्छर जो उसे पकड़े और मारे वो जरूरी नहीं कि कोई मुशर्रफ हो, हल्की खसीस मखलूक है, लेकिन उसकी कुदरत के सदके जाऊं, जब वो इतने बड़े बड़े बदमाशों को मरवाता है तो इन मच्छरों से कटवाता है। बातें और तरफ चली जाएंगी। एक तो ये मुवाजना करो कि तुमने क्या दिया, हम तुम्हें क्या देते हैं। हमने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तो मुसलमानों कम से कम मुसलमानों की शक्ल तो दी है, और कुछ नहीं दिया। इन जवानों के सर पे पगड़ी तो दी है, और कुछ नहीं दिया। इस्लामी लिबास तो दिया है, और कुछ नहीं दिया। तुम्हारी मस्जिदों में अजानें तो दी हैं, और कुछ नहीं दिया। तुम्हारी दरसगाहों को तो आबाद किया है, हमने तुम्हें और कुछ नहीं दिया। कुरान मजीद की तालीम तो तुम्हें दी है, और कुछ नहीं दिया। तुम्हें मुसलमानों के नाम तो दिए हैं, वरना आज मेरा नाम अब्दुल करीम ना होता, सीताराम लद्दू राम लोग कहते। ये आज जो मुसलमानों का नाम है अल्लाह के कुरान का सदका। समझिए थोड़ा सा और मुवाजना। तुमने वहां क्या पढ़ाया, हमने यहाँ क्या पढ़ाया। हज़रत शेखुल हदीस एक बड़ी अजीब बात कह गए। ये सारी बात मैं हज़रत शेख की तकरीर पर कर रहा हूँ। बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, मैं इसलिए आपसे बातें कर रहा हूँ कि मेरी बातें आपको आसानी से समझ आ जाए। शेख ने बताया कि वहां कोशिश की गई स्कूलों में मास्टर साहब को इस्लामियात का टीचर बना दिया जाए, इस्लाम वो पढ़ाए। मुफ्ती महमूद मरहूम कहा करते थे
جس کے 6 فٹ کے اپنے وجود پہ اسلام نہیں، وہ کسی کو کیا اسلام دے؟ اے اسلام پڑھانے کے لیے تم نے اس کا انتخاب کیا جس کے اپنے وجود پر اسلام نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک بات کہتا ہوں، مدارس کے حوالے سے یاد رکھو، تمہاری درسگاہوں میں لڑکا 16 پڑھ لے، ڈبل ایم اے کر لے، 16 دونا 32 جماعتیں پاس۔ ڈبل ایم اے کا یہ معنی ہوگا نا، 16 دونی 32 جماعتیں پاس کر لے، وہ اتنا بیکار ہے کہ 32 جماعتیں پڑھ کر بھی اپنی کسی کتاب میں پیغمبر کا حلیہ نہیں پورا پیش کر سکتا۔ 16 سال پڑھنے کے بعد وہ اپنی شکل و شباہت پیغمبر کی سیرت کے مطابق نہیں بتا سکتا۔ میرے جامعہ فاروق اعظم کا آپ داخلہ فارم اٹھائیں، اس میں ہم نے پہلی شرط یہ لکھی ہے کہ تمہارا لباس بھی سنت کے مطابق ہوگا، تمہارا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہوگا۔ تم 16 سال میں وہ نہیں پڑھاتے جو ہم بچے کو پہلے دن سکھاتے ہیں۔ تم ہم سے موازنہ کرتے ہو، تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو۔ تم نے غلامی سکھائی ہے، ہم نے حریت اور آزادی سکھائی ہے۔ تمہارا بچہ ایم اے کر کے بھی ڈگریاں اٹھا کر میٹرک فیل ایم این اے اور ایم پی اے کے دروازے پر دھکے کھاتا ہے، اس غریب کو ملازمت نہیں ملتی، اس کے علم کو، اس کی شخصیت کو تم نے داغ کیا ہے، اسے ذلت کا درس دیا ہے۔ اور ہم نے قرآن پڑھنے والے اس بچے کو اتنی عزت سکھائی ہے، آزان دینا سیکھ لو، اللہ کے دروازے پہ جا کے مؤذن بن کے آزان دیا کرو، رزق کے دروازے وہ کھولے گا، مخلوق کے سامنے بھیک نہ مانگا۔ ہم نے خودداری کا درس دیا ہے، تم نے قوم کو بھکاری بننے کا درس دیا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا موازنہ کرو گے؟ حضرت بتا رہے تھے کہ اسلامیات پڑھانے والے قادیانی بھی ہوتے ہیں، رافضی بھی ہوتے ہیں، داہری ملحد بھی ہوتے ہیں، وہ تو پڑھانے کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں جو نصاب تم لکھتے ہو، ہندو کا لکھا ہوا، سکھ کا لکھا ہوا، یہودی کا لکھا ہوا، مجوسی کا لکھا ہوا، عیسائی کا لکھا ہوا، تم اپنے اسکول کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہو، اور جو ہم دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں یہ عام آدمی کا نہیں لکھا ہوا، یہ ایسی مقدس کتاب ہے جس کے بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل روح اللہ ہے، جس پہ نازل ہوئی محمد رسول اللہ ہے، جس کا پہلا مدرسہ کعبۃ اللہ ہے، پہلی پڑھنے والی جماعت اصحاب رسول اللہ ہے، پڑھ کر عمل کرے تو ولی اللہ ہے، بادشاہ پڑھ لے تو ذل اللہ ہے، عورت پڑھ لے تو امت اللہ ہے، عام آدمی پڑھ لے تو عبد اللہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی پہلی سورت الحمدللہ ہے، جس کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ ہے، جس میں 6666 مرتبہ، جس میں 2650 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو خالق نے محبوب پہ اتاری۔ اور تمہارا نصاب وہ ہے جو ہر 2 سال کے بعد بدلتا ہے، ہمارا نصاب وہ ہے جس دن سے محبوب پہ اترا اس دن سے آج تک کروڑوں قیامتیں تو دنیا میں برپا ہو سکتی ہے، قرآن کے ایک نقطے میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ ہم نے یہ نصاب دیا، تم نے وہ دیا۔ ہم نے بچوں کو ادب سکھایا، تم نے بے ادبی سکھائی۔ اور ادب ملاحظہ کریں، تمہارے بچے سکول جائیں، نصاب کتاب اٹھا کر جب چاہتے ہیں تو ان کے بستے کہاں پر ہوتے ہیں؟ سارے بولے پیٹھ کے پیچھے، جس کی اہمیت نہ ہو اسے کسے پشت ڈالا جاتا ہے۔ میرا بچہ جب قرآن لے کے مسجد کی طرف آتا ہے وہ قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ کچھ تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بحیثیت مسلمان ہونے کے سوچا کرو۔ لاٹ میں کالے بے غیرت کافر کالے انگریز نے کالا نظام تعلیم تمہیں دیا، تم اس پر خوش ہو گئے۔ پھر موازنہ کرو، معذرت کے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی نے، معذرت کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی نے، معذرت کے ساتھ جناب والا آپ کی بڑے بڑے کالجز اور اداروں نے علامہ اقبال تو پیدا کیا، محمد علی جناح تو پیدا کیا، سر سید تو پیدا کیا، عبد الرب نشتر تو پیدا کیا، محمد علی تو پیدا کیا، ان لوگوں کو تو پیدا کیا، لیکن جو ہم نے پیدا کیے ہیں ان کی مثال تم نہیں دکھا سکتے۔ تمہیں ناز ہوگا، تم نے اقبال پیدا کیا اور اس کو حکیم الامت کہا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے ادیب لوگ جہاں بیٹھے ہوں گے، اقبال کی ساری اقبالیات پڑھ جائیے، کلیات اقبال پڑھ جائیے، زبور عجم پڑھ جائیے، بال جبریل پڑھ جائیے، باقدارہ پڑھ جائیے، شکوہ جواب شکوہ ساری کتابیں پڑھ جائیے۔ کسی آدمی کو تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، داڑھی مڈا ہے تو اسے داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، فلسفے آپ بڑے پڑھ لیں گے،
آپ تصور تخیل میں بہت اونچے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو فلسفی راضی اور غزالی بنانا شروع کر دیں گے، لیکن عملی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ وہ جس کے اپنے عمل میں تبدیلی نہیں تھی، اس کی کتاب کیا تبدیلی پیدا کرے گی؟ میرا ایک حکیم الامت ہے جس کو دنیا نے اشرف علی تھانوی کہا ہے، اس کی چھوٹی سی 16 صفحے کی کتاب ہے جزاء الاعمال۔ تنہائی میں کوئی آدمی اس مجمع میں سے کھڑا ہو جائے، ایک دن بیٹھ کر رات کو علیحدہ بیٹھ کے پڑھ لے، میں رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو جو دنیا کے مجرم کی سزا ہے میری سزا کرنی۔ تم بڑے خوش ہو، ہم نے محمد علی جناح تیار کیا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ، بغیر کسی تبصرے کے، کہ جس کو مسجد میں جانے کے آداب کا پتہ نہ ہو، جسے نماز پڑھنے کے سلیقے کا پتہ نہ ہو، ہم نے اس کو قائد کہا۔ ایک ہم نے بھی بانی پاکستان پیدا کیا جس کو تاریخ نے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کے نام سے یاد کیا ہے، اور جس نے مسلم کی شرح فتح الملہم لکھی ہے، جس نے شیخ الہند کے ترجمے پر تفسیر عثمانی لکھی۔ اللہ نے شرف قبولیت کی طرح عطا کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سعودی عرب نے اسے شائع کر کے پوری دنیا میں تقسیم کیا، اور جس وقت پاکستان کی پرچم کشائی کا وقت آیا، اس وقت محمد علی جناح نے آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا تھا، لوگوں تم جانتے ہو میں یقیناً وکیل ہوں، بیرسٹر ہوں، وکیل کا کام کیس لڑنا ہوتا ہے، مقدمہ وکیل کا نہیں ہوا کرتا، مقدمہ مالک کا ہوتا ہے۔ اس مقدمے کا مالک علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، تحریک پاکستان کا بانی شبیر احمد عثمانی ہے، اس ملک کی قیادت کا حقدار وہ آدمی ہے۔ میں نے تو وکالت کی ہے اس کی طرف سے، اس لیے کہ آگے انگریز ہم پہ مسلط تھا، میں اس کے سامنے میں نہیں جانا تھا، کام اس کا تھا، کرایا میں نے ہے، اس لیے پرچم کشائی میرا حق نہیں۔ پاکستان مغربی پاکستان میں پرچم کشائی شبیر احمد عثمانی کرتا ہے، اور مشرقی پاکستان میں پرچم کشائی علامہ شبیر احمد عثمانی کرتے ہیں۔ اصل بارے سے ہاں پہلی مولانا اشرف علی تھانوی تھے، وہ مصور پاکستان تھے، نہیں سمجھے، بہت اچھا، توجہ سے بات کو سمجھیے۔ میں صرف ایک بات اس حوالے سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے ہماری کاوش اور محنت ضائع نہ کریں۔ ان مدارس پر جو ہمارے اکابر مقام کر رہے ہیں، ان کو اپنی تنقیدوں کا نشانہ مت بنائیے۔ میں اگلے دن ایک جلسے پہ تھا، رات کو 3:30 بجے جلسے سے فارغ ہوئے بولے والا جامعہ امتیاں میں شیخ الحدیث مولانا عبد المجید صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ میں حضرت نے ختم مشکات شریف کی آخری حدیث پڑھائی، اس رات مجھے حضرت کہنے لگے مولوی صاحب اس سال تو آپ کے بہت زیادہ جلسے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے اشتہار چھپ رہے ہیں پورے ملک میں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً اس مہینے میں 15-20 ختموں میں تو میں شریک ہو چکا ہوں۔ ابھی تک یہ رو جو چل رہی ہے، کل بھی ایک جگہ لاہور کے قریب وہاں بھی اسی طریقے سے مشکات کا ختم ہے، اسی طریقے سے جمعرات کو دن کو ڈیرہ غازی خان میں جامع اسلامیہ میں ختم بخاری ہے، رات کو قاسم علوم میں ختم بخاری ہے، اس سے اگلے دن پھر قاسم علوم فقیر والی میں ہے، اس سے اگلے دن منچر آباد صادقآباد میں ہے، منچر آباد میں جامع صادقیہ میں لین لگی ہوئی ہے مدارس کے اجتماع کی۔ حضرت شیخ الحدیث مجھے کہنے لگے اور کچھ نہ کرو، یہ سارے اشتہار اکٹھے کر کے کلنٹن کو بھیج دو تو اس کا ہارٹ ویسے فیل ہو جائے۔ بھائی اتنے مولوی اس نے کوشش کی ملا ختم ہو جائیں، اور میں تحدیثاً بن نعمت کہتا ہوں، رات ہمارے خانپور میں جامع عبداللہ بن مسعود کا بہت بڑا جلسہ تھا، 3 دن کا 3 دن رات مسلسل جلسہ رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 5:30 بجے صبح دعا ہوئی، پوری رات جلسہ رہا۔ بنا مبالغہ کہتا ہوں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ اجتماع تھا۔ وہ بہت بڑا سکول کا گراؤنڈ ہے، نہ کافی ہو گیا، لوگ سڑکوں پہ گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے، حیران تھے کہ یہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ پہلی رات مولانا مسعود نظر آئے، بہت بڑا اجتماع تھا۔ آخری رات کو مولانا اعظم طارق علی شیر حیدری، یہ ہمارے بھائی جامی صاحب کو دیکھ کر گئے، یہ بھی وہاں تھے، اور حضرات بھی تھے۔ آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے، دنیا دیکھتی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے فیصلے بات میں اسی مہینے میں 4 دن